Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Today we will continue with our chapter number 5, the coastal plain and the islands. We already learned about the coastal plains and its islands. Before we start new topic, we recapitulate previous points. We already learned about the coastal plain. Now we know that the Indian coastal line stretch along the Deccan Plateau and its total length is about 7,500 kilometer, and this plateau is surrounded by water on three sides: the Arabian Sea on west and the Bay of Bengal on the east and the Indian Ocean on the south. The Deccan Plateau separate the western coastal plain and the eastern coastal plain. And the coastal plains are very fertile. There are two coastal plains in India, the eastern coastal plain and the western coastal plain, and they meet at Kanyakumari. This dark area indicate the coastal plains, eastern coastal plains and the western coastal plains. Today we are going to study about the western coastal plains area. Western coastal plain, it is a thin strip of coastal plain 50 km in width between the west coast of India and the Western Ghats hills, which start near the south of the river Tapi. जो हमारी वेस्टर्न कोस्टल पार्ट्स है, ये बहुत ही पतली स्ट्रिप है. ये हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से कम चौड़े हैं और ये हमारा बसा हुआ है वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एंड द वेस्टर्न घाट हिल्स के बीच में. And it begins from Gujarat in north and passes through Maharashtra, Goa, Karnataka and Kerala. ये हमारे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरल में फैला हुआ है. Look at the map. Eastern coastal plains begin from West Bengal in the north and passes through Odisha, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. We had already learnt about these states. Today we are learnt about the state of western coastal plains. These are Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka and Kerala. Now we start the first state, that is Gujarat. Gujarat lies on the west coast of India. Kondala port is located in Gujarat. Gandhinagar is the capital, while Ahmedabad is the most important and the largest city of the state. Sabarmati Ashram, where Gandhiji spent many years, is also located here. It is also one of the largest textile center in India. Gujarat is one of the most progressive and developed state of India. Gujarat lays on the western coast of India. ये जो हमारा गुजरात है वेस्ट कोस्ट में स्थित है. एंड द गांधीनगर इज़ द कैपिटल ऑफ गुजरात. जो गांधीनगर है वो हमारे गुजरात की कैपिटल है. एंड अहमदाबाद सिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड लार्जेस्ट सिटी है इस स्टेट की ऑफ गुजरात. एंड साबरमती आश्रम, where Gandhiji spent many years, is also located here.
साबरमती आश्रम, जहाँ गांधी जी ने अपना बहुत जीवन के बहुत सारे साल गुजारे, वो हमारा यही गुजरात में स्थित है। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्सटाइल सेंटर इन इंडिया, और ये हमारा देश का बहुत ही बड़ा टेक्सटाइल सेंटर है। एंड गुजरात इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव एंड डेवलप्ड स्टेट ऑफ इंडिया। जो गुजरात है हमारे देश का बहुत ही डेवलप स्टेट माना जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ गुजरात आर फार्मर एंड ट्रेडर। शुगर केन, पीनट, फ्रूट्स, wheat, coconut are some major crops grown here. The state is also known for its dairy farming. Anand is the home of Amul milk and other dairy products that are popular all over the India. Garba is the popular folk dance. Gujarati is the common language of communication. एंड द मोस्ट पॉपुलर पीपल ऑफ गुजरात आर फार्मर एंड ट्रेड। जो हमारे गुजरात के लोग हैं वो अधिकतर फार्मर हैं या व्यापारी हैं। यहाँ पर शुगर केन, पीनट, फ्रूट एंड व्हीट, कॉटन, दिस टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन। एंड द स्टेट as also known for its dairy farming, और यहाँ पर डेयरी फार्मिंग भी की जाती है। As you know, you all know the Amul products. Anand is the home of Amul milk and other dairy products that are popular all over the India. जैसे कि आप अमूल नाम से अमूल नाम को जानते हैं। अमूल का फुल फॉर्म है आनंद मिल्क उद्योग लिमिटेड। तो ये यहाँ का गुजरात में बहुत ही फेमस है, और अमूल की बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो ऑल ओवर इंडिया में बहुत पॉपुलर हैं। एंड रास गरबा इज़ द पॉपुलर फोक डांस ऑफ गुजरात, एंड गुजराती इज़ कॉमन लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। इन गुजराती is a main language of the Gujarat peoples. Second state is Maharashtra. Mumbai is the capital of Maharashtra. Capital of Maharashtra is Mumbai. It is located on the Konkan coast and it is the largest seaport of India. It is also an important industrial center. Mumbai High in the Konkan coast is famous for its oil field. जो हमारा मुंबई है वो जो है महाराष्ट्र की कैपिटल है, और जो इसमें it is located on the Konkan coast. महाराष्ट्र is located on the Konkan coast, और इट इज़ द लार्जेस्ट सी पॉट ऑफ इंडिया। यहाँ पर बहुत बड़ा सी पॉट है, एंड इट इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर। और यह हमारा एक व्यापार का बहुत, ये महाराष्ट्र है ये बहुत बड़ा एक सिटी है। यहाँ पर बहुत, ये फिल्म सिटी भी इसे कहा जाता है। एंड मुंबई हाई इन द कोंकण कोस्ट इज़ फेमस फॉर इट्स ऑयल फील्ड। ये मुंबई जो है अपने यहाँ पर रिफाइनरी वगैरह के ऑयल्स के लिए भी ये बहुत ही फेमस माना जाता है। नेक्स्ट स्टेट इज़ गोवा। गोवा lays to the south of Maharashtra. Panji is its capital. It is the smallest state in India. जो गोवा है वो हमारे महाराष्ट्र के साउथ में, जो महाराष्ट्र के साउथ में गोवा स्थित है। एंड जो पणजी इज़ द कैपिटल ऑफ गोवा, एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। गोवा इज़ अ स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। जो गोवा है वो सबसे छोटा राज्य है हमारे देश का। एंड फार्मिंग एंड फिशिंग आर टू मेजर ऑक्यूपेशन।
The farmer mainly grow rice, केशव, मैंगो एंड कोकोनट. जो फार्मिंग है एंड फिशिंग जो है वो मेजर ऑक्यूपेशन है यहाँ के लोगों का. और जो फार्मर जो मेनली यहाँ ग्रो करते हैं वो राइस, केशव, मैंगोज एंड कोकोनट, इस तरह के कई क्रॉप्स यहाँ ग्रो किए जाते हैं. दिस स्टेट इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल बीचेस एंड चर्चेस. गोवा स्टेट इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल बीचेस. यहाँ समुद्र है, उसके बीचेस हैं एंड आल्सो इट इज़ फेमस फॉर इट्स चर्चेस. And St. Xavier Church, Mahalakshmi Temple and Fort Agoda are the other places of tourist attraction in Goa. गोवा में सेंट जेवियर चर्च, महालक्ष्मी टेम्पल एंड फोर्ट है अगोड़ा. ये बहुत ही अट्रैक्शन करते हैं हमारे टूरिस्ट के लिए. यहाँ घूमने आते हैं और इन प्लेसेस को देखते हैं. पीपल स्पीक कोंकणी एंड इंग्लिश इन गोवा. द फेमस लैंग्वेज कम्युनिकेशन बाय पीपल, दे यूज़ कोंकणी एंड इंग्लिश. मोस्टली दे स्पीक कोंकणी एंड इंग्लिश लैंग्वेज. नेक्स्ट स्टेट इज कर्नाटका. The coastal plain of Karnataka lays to the south of the Goa. जो कर्नाटका है वो हमारे साउथ, गोवा के साउथ में है, स्थित है. These are covered with a thick teak forest. जो हमारा ये एरिया है वो टीक के फॉरेस्ट जंगलों से घिरा हुआ है. Fishing and farming are the two main occupation of the people living in the coastal plain of Karnataka. जो ये लोग कर्नाटका के लोग फिशिंग और फार्मिंग, इनका जो है टू मेन ऑक्यूपेशन है. एंड द वैरायटी ऑफ स्पाइसेस एंड कोकोनट आर ग्रोन हेयर. यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रकार के स्पाइसेस यानी कि मसाले और कोकोनट उगाए जाते हैं. एंड मंगलुरु इज़ द इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट. जो यहाँ पे कर्नाटका में मंगलुरु एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट है. एंड नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेट इज केरला. इट लाइज इन द साउथ ऑफ द मालाबार कोस्ट. ये मालाबार कोस्ट के साउथ में है. एंड द कैपिटल सिटी इज तिरुवनंतपुरम. तिरुवनंतपुरम इज द कैपिटल ऑफ केरला. तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है. And the crops grown here are rice, coconut, rubber, coffee and spices. जो यहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं उसमें राइस, कोकोनट, रबर एंड कॉफ़ी और बहुत प्रकार के मसाले हैं. एंड केरला इज़ द मोस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया. केरला इज़ द इंडिया का सबसे लिटरेट मीन्स जिसमें सभी लोग पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं. वो इंडिया का जो केरला है वो एक स्टेट है. तो केरला इज़ द मोस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया. ऑलमोस्ट एवरीवन नो हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइट. एंड मलयालम एंड इंग्लिश आर द मेन लैंग्वेज. एंड कथक is the main classical dance. And Onam is a popular festival. Snake boat race are had during Onam. It is a popular festival in Kerala. So students, today we learn about the western coastal parts and their states. So there we finished our lesson, and I hope you all are understood it very well. Thank you. Have a nice day.